टैपिंग देखा आप लोगों ने लोगों को करते हुए? टैपिंग इज इम्पेशंस। इम्पेशंस सबसे ज्यादा किसमें होता है? बच्चों में कि बड़ों में? क्वेश्चन आंसर स्लॉट है ना, बच्चा को सिखाइए. इफ द क्वेश्चंस डजंट कम फ्रॉम द ऑडियंस, दे शुड बी एबल टू थ्रो द क्वेश्चंस एंड दे वुड बी एबल टू आंसर. स्कूल लेवल तक स्माइलिंग फेस चलता है. उसके बाद में इन लोग कहते हैं कि ट्राई टू नॉट हैव ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस, हैव अ न्यूट्रल फेस. इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा. The most important element in classroom delivery for teachers of higher education, please remember, आपको देख के बच्चा का immediate attraction and distraction आपका facial tilt से आता है. What is the facial tilt? बहुत सारे लोग देखेंगे ऐसा करके घर बैठा बोल लीजिए कहो ऐसा क्लास लेते हैं. तो tilted face is a sign of aggression. मुझे एक चीज बताइए, आपका body language is right or wrong? Who is going to decide? You or the observer? तो ऑब्जर्वर का आंखों से जो चीज पैदा हुआ वही चीज डॉक्यूमेंट हो जाएगा. So let us understand from the observer's point of view. दूसरा, आपका ये body language means this, आपका ये body language means this personality. इसका कोई साइंस है क्या? नहीं है. But there is a psychotherapeutic approach जिससे 80 to 82% तक इस चीज को वैलिड माना गया है. लेकिन फिर भी कंफ्यूजन स्टेट में है, होता है कि नहीं होता है. That's why the first thing is called tilted face. Now, a tilted faced person can also mean that he is listening to it with deep concentration. डीप तरीके से बात कर रहा है लेकिन घर में कम. सो द ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू दैट. आइडियली दैट्स द रीजन वी सजेस्ट ऑलवेज ट्राई टू हैव अ स्ट्रेट फेस, chin facing towards the chest and be humble as much as possible. That is what we speak about facial tilts. Smile. Dictate the terms and conditions of the smile according to your delivery of the class. पूरा क्लास में you should not be frowning. You are not a villain in the classroom. You are a facilitator. But a smiling faced teacher always would mean vulnerability. बच्चा बहुत पास आने का कोशिश करेंगे. कोई भी पार्लियामेंट में ऐसा लॉ पास नहीं किया है. There is no Supreme Court norms, but still I'll tell you, think about it and activate. As much as possible, do not let your students enter your Instagram accounts and Facebook accounts. Do not let them have a peep at your personal life. Ma'am, kali biyar gosile, ki duniya lagisile apuna kapur chur, looking very nice. These things should not come. Now there are certain teachers who might say, sir, we know how to handle it. Go ahead, life is yours. As long as what I can put a concern to all of your people is that till the time the child is peeping inside your personal space, you will never be able to regulate the decorum in the classroom. ये कभी होगा ही नहीं. You become a mode of discussion in the common rooms also. As much as possible, refrain. 3, 4, 5 friend request जब आएंगे, आप रुकिए और क्लास में खड़ा होके बोलिए, do not do this, I don't like it. बच्चा भेजेगा तो आपकी. मुझे एक चीज़ बताइए तो, आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट में बच्चा को घुसाने का कोई खास वजह है क्या? कोई खास वजह है? नहीं है. बच्चा का कोई खास वजह है क्या? है. ओवर फैमिलियरिटी. आपका पास जाएगा मेंटल स्पेस में. That is what I'll bring the second point right now. To be very very careful about it. हो गया the first part. Second part क्या है? What is the second part of the body? दोनों हाथ लेके हम लोग क्लास में जाते हैं क्या? ऐसे ही पूछा मैंने. कुछ भी करें जिंदगी में एक चीज कभी भी मत कीजिएगा. Never ever sit in this posture. This is one of the most negative body language. सर डर के मारे कैसा हाथ खोला है पीछे देखिए. This is one of the most negative body language human civilization could see. This is very very erroneous body gesture. It is called as cut off body language, cut off gesture. ऐसा मतलब हुआ है मुझे अरुखी का बोलना लगा. That means this. But this can be a comfortable body gesture also. Fine, but then don't do it while you are initiating classrooms, discussions or meetings. This is very very wrong. No body language is wrong till the time you put in some kind of an actions and activities that I am bringing to you right now. अच्छा, ये आपने देखा होगा कहीं पे. मोबाइल फोन दीजिए ना किसी का. Have you seen certain people while they talk? नहीं, while they listen. Imagine you are talking, somebody is listening to you. जो listen करता है वो ना ये चीज करता है. Have you seen this? Yes. Have you seen? पेन से भी करेगा या तो मोबाइल से. इज वेरी कॉमन. Have you seen this? ये यही लेवल में रख के ही करता है. This is called a reverse T signal. ये सीधा T, ये reverse T. Reverse T signal का ये मतलब होता है कि this entire body constitution is telling you to shut up. He does not want to listen to you. कोई आदमी अगर ऐसा करता होगा ना, आप अपना बात को रुका के बोलिए. बोलो तो क्या बोला? एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल पाएगा. If somebody very senior to you is doing this, stop your conversation and say, sir, piece of কথা পাতিম বাৰু. এতিয়া চাকে আপুনি ব্যস্ত আছে. Then and then he'll say, নাই ব্যস্ত নাই. ককচোন কি আছিলে? He'll come back to you. This means reverse T signal, that you don't do it. There are certain teachers who takes up classes like this. Have you seen?
Point number 1, point number 2, point number 3. Have you seen this? Have you seen? Psychotherapy वाले बहुत लोग कहते हैं these are certain group of people who are very very short tempered. हमारी मुंह फरारी लाइफ ये लोग अगर ज़्यादा गुस्सा उठे ना पेन देखा आपने सिग्निफिकेंट इम्पल्सिवनेस होता है, कप प्लेट उठा के मार देते हैं, पेन उठा के मार देते हैं, टेबल में धक्का मार के बात करते हैं. इम्पल्सिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है इन सब चीज़ों का. So be very careful about these body languages. इसका नाम तो नहीं है, that's the reason offline में ये सब चीज़ मैं दिखा सकता हूँ. Have you seen people who snaps? This is called snapping. देखा? स्नैपिंग वालों से थोड़ा सा ध्यान से रहिए. अगर मेरा और आपका झगड़ा लगा, क्लोज रूम में झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा. स्नैपिंग वाला क्या करता है? घाव को पाल के रखता है और पब्लिकली डबल डोज देगा. दे आर वेरी डेंजरस ग्रुप ऑफ पीपल. हाथों का बहुत सारा बॉडी लैंग्वेजेस का एक और इम्पॉर्टेंट बॉडी लैंग्वेज इज फिजिटिंग. फिजिटिंग का मतलब है, कभी देखेंगे आप माइक्रोफोन पोडियम में भी जब कोई बात करते हैं ना, दे डू दिस. फिजिटिंग मतलब ऐसा, ये हाथ रखे, ये सब करते हैं, ये करते हैं, या तो ऐसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं. हैव यू सीन क्लासरूम में भी मार्कर पेन लेके समझाने के बाद में कई सारे टीचर्स ये हरकत करते हैं. इम्पेशेंस. Impatience. Anybody any questions? फटाफट कौन होले में उलाओ. This is inside you. Impatience. So refrain yourself from doing anything like that. Have you seen certain teachers class में क्लास करवाने के बाद में ऐसा उछल कूद करते हैं? Do not do it. It distracts the attention of the particular domain of the child's intensity and magnitude of learning and understanding. it कट जाता है. Do not do this. Incline का मतलब है ready to take. Recline का मतलब है refusal. नहीं लेगा. इसका ये मतलब नहीं होता है, बट आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा ना. इमेजिन कल जो मैंने आपको मैम को बोला था ताकि दे दूँ क्या, बिकॉज मैम तो सो गई थी, तो तबीयत खराब होता होगा, कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से मैम सो गए थे, रिक्लाइन किया था. बट आइडियली इन अ क्लासरूम यू विल नेवर लेट दिस थिंग हैपन एट ऑल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. क्लासरूम में तो कहीं ना कहीं पे हम लोग को हिटलर का रोल प्ले करना है. व्हाट हैपेंड? फीलिंग स्लीपी और व्हाट? गो आउटसाइड, sprinkle some water, get some water and come back. I'll wait for you. Fatafat. To make the child go, drink water, freshen up, come back, ensure by the time you're waiting in the class. Gussa se nahi, pyar se. And when he comes back, ask him, fresh now? Shall we start? Then you start. एक दिन हरकत करेंगे, दूसरा दिन बच्चा लगाम पर रहेगा. Don't scare him. Make him perplexed. सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? सही में बाहर जाके पानी पी के आऊँ कि बाद में धुलाई देगा. एंड जब वो पानी पी के बाहर से आया भी है, देन ऑल्सो इज थिंकिंग इसके ऊपर में शायद एक और एपिसोड आएगा, एक और एपिसोड आएगा. डू नॉट डू एनीथिंग. डू नॉट स्पीक मोर इन द क्लासेस अपार्ट फ्रॉम योर सब्जेक्ट एरियाज, अदरवाइज यू लूज टाइम. ये भी तो एक बात है. अगर आज का क्लास आज ये जगह पे ख़त्म नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा क्लास तो आप स्क्वीज नहीं कर पाएंगे. ब्लेंडेड में हम लोग तैयार नहीं है. सो लेट अस टेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम फ्रेम गिवन टू ऑल ऑफ अस. टोर्सो खत्म. लास्ट में क्या है? मुझे ना ऊपर में कोई चेयर दे दीजिए, तो फिर मैं ऊपर में लेग एक्टिविटीज दिखा देता हूँ. मैं जो एक्टिविटीज दिखाऊंगा ओनली थ्रू द लेग्स. कीप ऑब्जर्विंग माय लेग्स एंड सी द वे हाउ आई कीप एनालाइजिंग इट. जो आपको लगा, जैसा लगा आप मुझे बताते जाएंगे. खराब या अच्छा? क्यों? ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है? बट यू थॉट नो, हेंस इट इज बिकम एरोगेंट. चलो अभी एक्टिविटी करते हैं. ये कैसा लगा? Huh? Ma'am at the back, what did you say? Whom? Others. Who tries to control and intimidate others? The one who himself is scared of his own position. जानबूझ के करते ना ये सब, ताकि जोर जबरदस्ती से लोग दूर रहे. So these are a group of people who बाहर में एक बैरियर बना देते हैं कि इसके एरिया के अंदर में कोई आएगा नहीं, डर के मारे आएगा भी नहीं लोग. Number 1. Number 2, मेरा बाँव पाँव stopped. नहीं, I forgot to tell you one thing. ये आपको खराब लगा कि अच्छा लगा? खराब लगने का कौन सा पाव? राइट और द लेफ्ट वन? थिंक डीप, ऑब्जर्व एंड से. बोथ तो नहीं है, एक. Everybody says right, somebody says left. The one who says right, I should tell you, आपका आंखों का डिस्टेंस और मेरे पाव का डिस्टेंस सामने में है. इसके लिए विजिबिलिटी रेंज के लिए लगा दिस इज डिस्ट्रैक्टिंग. People who said left is very very correct. Left wala is tapping your personality under my shoes. This is called subdued dominance. जोर जबरदस्ती तुम्हारा पाव का नीचे में कुचल देगा तुम्हारा व्यक्तित्व को. That is the reason you felt bad. दूसरा, I have stopped tapping my left feet. Now it's only right feet. ऐसा देखा आपने?
लोग जब बात करते हैं ऐसा सुनते हैं. These are very dangerous group of people. They are called as heists, strategizers. इनके पास में आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके जाइए, ये आपको उसी प्रॉब्लम का सलूशन बताएंगे, आप ही को उस प्रॉब्लम का कॉज बना के. They are very difficult group of people. अब ऐसा देखा, ये चीज देखा, टोस के ऊपर में आपका वेट है and you are keeping on shifting the weight. This is fickle-minded body behavior. What is fickle-minded body behavior? करूं कि नहीं करूं? नहीं करेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. This is fickle-minded body behavior. सफेद वाला शर्ट लेना चाहिए था कि ग्रीन वाला शर्ट लेना चाहिए था? सफेद. लेकिन सफेद में दाग लग जाएगा तो ग्रीन. लेकिन ग्रीन वाला मुझे कॉलेज में अच्छा नहीं लगेगा. This is this. Have you seen this? टैपिंग देखा आप लोगों ने लोगों को करते हुए. टैपिंग इज इम्पेशंस. इम्पेशंस सबसे ज्यादा किसमें होता है? बच्चों में कि बड़ों में? बच्चों में कि बड़ों में इम्पेशंस? अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए. बच्चों में कि बड़ों में? बच्चों में ना, बच्चों में. वो बड़ा तक रुक गया. इम्पेशंस. कुंतला मैम সদায় মোৰ লগত কাজিয়া কৰে, কুন্তলা মেমৰ সিট যদি চেঞ্জ নকৰে মই অফিসত চাকৰি নকৰো. এতিয়া these are very difficult group of people who has lack of maturity to handle difficulties and challenges of the department. हम लोग जब जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे केक वॉक तो नहीं होता ना. There are a lot of difficulties which will come. We need to cope up, we need to balance, we need to deactivate. ये लोग क्या करते हैं? Problems को उछालते रहते हैं. Very difficult. आपका जिंदगी भी खराब. Let me give you an example. हमारा डिपार्टमेंट का या कॉलेज का बहुत सारा डिपार्टमेंट है. बहुत सारा डिपार्टमेंट का एक इंचार्ज है हमारा प्रिंसिपल. सब डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रॉब्लम अगर हम लोग प्रिंसिपल के सामने में डालेंगे, डू यू थिंक द प्रिंसिपल हैज सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स? वो क्या करेंगे तब? बीमार पड़ जाएंगे, 2 हफ्ते का छुट्टी में चले जाएंगे. You cannot expect that he should have all the solutions to all the problems. And सबसे बड़ा बात है, जो भी आप एजेंडा लेके जा रहे हैं, please monitor is actually that a problem or not. That could be very, very childish also. There are certain things in the classroom that you should handle of your own and do not let the principal involve to the entire situation directly. बच्चा को बार-बार आप डराएंगे ना, प्रिंसिपल को लेके जाऊंगा, प्रिंसिपल क्लास में लेके जाऊंगा, बच्चा बोलेगा जा इससे ज्यादा इतना ही करेगा और तो कुछ कर नहीं पाएगा, चलो तुम क्या लेके जाएगा, हम जाता प्रिंसिपल के पास में. डर को भी इतना मत डराओ कि डर ही चला जाए. तो दैट इज द सेम थिंग. डू नॉट डू इट. लेकिन हाँ, कोई भी बड़ा इश्यू अगर आप मैनेज करते हो, गिव द इंफॉर्मेशन टू द प्रिंसिपल सो दैट ही नोज ऑन एवरीथिंग, एवरी डिटेल मूवमेंट, बट ही शुड नॉट बी डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग. आप बताइए सर, आप दूर रहिए, हम लोग हैंडल कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी देने के लिए. Because tomorrow if it goes beyond the level, he is the one who has to come and help you. So that is why I say do not do these things frequently. और एक last body language. ये देखा क्या आपने? अच्छा लगा, खराब लगा? This is one of the world's most vulgar body language. अश्लील and अशालीन. अगर कोई भी बच्चा ये चीज करे, kindly ask them to correct it. हमेशा remember, if there is a senior person sitting next to you, do not use the whole portion of the chair. जिंदगी में पहली बार बैठा, आराम से बैठा. Not like that. You've got to talk to the director. You've got to talk to the meeting. Always sit in half portion of the chair. Half portion of the chair. आधा पोर्शन में बैठने के साथ जाहिर सा बात है आपका पाँव चेयर के नीचे घुस जाएगा. चेयर के नीचे घुस जाएगा. आप देखिए हाथों को यहाँ पे रखा, रिलैक्टेंस. हाथों को यहाँ पे रखा, उठ जाएगा, इम्पेशंस. हाथों को अंदर में रखा, आराम से बात करने के लिए तैयार. कितना घंटे का मीटिंग होता होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 to 1? 5 hours होता है ना. तो 5 hours में तो ऐसा करके बैठना चाहिए. फिर तो आराम से नहीं कर सकते ना, so push yourself back and sit comfortably, but do not recline. रिक्लाइन मतलब आपका टॉर्सो आगे में, आपका हाफ पोर्शन बॉडी आगे में और पूरा का पूरा बॉडी को आपने सुला दिया है. दैट इज हाउ द पर्सन एड्रेसिंग द मीटिंग विल आल्सो बी इरिटेटेड. और बार-बार आप ही को उल्टा-पुल्टा सवाल करते रहेंगे और आप बोलेंगे आज ही सारे मुंह के लिए पल्ले. योर बॉडी लैंग्वेज वाज रॉन्ग. दैट इज द रीजन. प्रेजेंटेशन का सबसे प्रॉब्लम होता है हाथों को कहां पे रखे आए. पॉकेट में रखे, पीछे में रखे, कि घर पे रख के आने से अच्छा था, है ना. तो बच्चा को हमेशा सिखाइए, आप भी सीखिए. हमेशा हाथ हैज टू बी इन द साइड ऑफ योर बेली बटन. हियर, यहाँ पे. अब यहाँ पे हाथों को पकड़ना ही पड़ेगा, ऐसे ही रखना पड़ेगा, ऐसा कोई बात नहीं. दोनों हाथों ऐसे रखिए, खुला छोड़ दीजिए. दाहिने साइड से कुछ समझा रहे हैं ना आप यहाँ पे, ये वाला हाथ यहाँ पे. बाया साइड से कुछ समझा रहे हैं, ये वाला हाथ यहाँ पे. जितना हाथ यहाँ पे उतना अपना बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट. बच्चा जब खड़ा होगा, इंक्लूडिंग यू फॉर प्रेजेंटेशन, कभी भी मिस्टर बीन की तरह खड़ा होने मत दीजिए. दोनों पाँव को ऐसा कभी भी नहीं.
They should always stand straight, trying to draw an imaginary straight line and putting a small gap in both the hands, and they would be giving a presentation. प्रेजेंटेशन दिलवाते वक्त बच्चों को सिखाइए कि प्रेजेंटेशन का स्क्रीन का सामने से मत जाइए. आपने देखा होगा देयर आर वेरी प्रोलिफिक स्पीकर्स जो प्रेजेंटेशन स्क्रीन से सामने जाते हैं, सेंटेंसेस उसका मुंह से छाती से जाते रहते हैं. हैव यू सीन दैट? और कोई प्रोजेक्शन स्क्रीन में जाके वहां पे समझाना शुरू करता है. बैड मैनर्स ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन का स्क्रीन इज फॉर द ऑडियंस. जो प्रेजेंट करेगा वो विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. ही विल नेवर लुक अप बैक. उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए, उसको तैयार कीजिए. दैट इज द वे हाउ प्रेजेंटेशन शुड हैपन. प्रेजेंटेशंस करने के लिए कभी कभी बॉयज, वी आर नॉट बायस्ड बट देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट डिनाई आल्सो. बॉयज कभी कभार सामने का डेस्क में ऐसा लीक करके भी प्रेजेंटेशंस देते हैं सामने में. गर्ल्स शुड अवॉइड डूइंग इट बिकॉज दे आर नॉट वेरी वेल ग्रूम्ड ऑन डूइंग ऑल दिस. दैट इज द ओनली कैच दैट वी कैन अंडरस्टैंड. Presentation platform should always be monitored that a child has to be professionally groomed in a professional attire. Presentation कभी भी किसी भी हालात पे अनप्रोफेशनल ड्रेस, अनप्रोफेशनल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशंस नहीं होते हैं. इट्स नॉट अ सेमिनार, इट्स नॉट अ लेक्चर, इट्स अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन का दिन में बच्चा हैज टू बी ऑन शूज, बच्चा हैज टू हैव अ सॉक्स, बच्चा हैज टू वेयर अ टाई, बच्चा हैज टू वेयर अ बेल्ट. ऑल दोज थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल अपीयरेंस वो तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा. मेक हिम go through the guidelines of the presentation. आज कितना समय का बात है प्रेजेंटेशन? 30 मिनट्स का. 30 मिनट्स में बच्चा प्रेजेंटेशन कितना समय देगा? 20 मिनट्स. बाकी 10 मिनट क्या करेगा? नो, देयर इज नो इंट्रोडक्शन का टाइम स्लॉट. हो गया 20 मिनट में पूरा खत्म. बाकी 30 मिनट हाँ ना, क्वेश्चन एंड आंसर. इंटरेक्शंस प्रेजेंटेशंस में नहीं होते. क्वेश्चन एंड आंसर. 20 मिनट्स बच्चा का क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. अच्छा, प्रेजेंटेशन के बाद में ऐसा हो सकता है कि बाकी 10 मिनट जो उसका क्वेश्चन आंसर राउंड है, ऑडियंस से कोई क्वेश्चन आए ही नहीं. क्वेश्चन आंसर स्लॉट है ना, बच्चा को सिखाइए. इफ द क्वेश्चंस डजंट कम फ्रॉम द ऑडियंस, दे शुड बी एबल टू थ्रो द क्वेश्चंस एंड दे वुड बी एबल टू आंसर. ऐसा नहीं है प्रेजेंटेशन में कि ही हैज बीन आस्किंग क्वेश्चन टू समवन इन द ऑडियंस. दैट इज मैनरलेसनेस इन प्रेजेंटेशंस. दैट यू कैन नॉट डू. आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल होगा, बोल के ही विल गिव द आंसर. आई एम श्योर आपके मन में ये भी सवाल होगा, ही विल गिव द आंसर. और देखेगा 30 मिनट खत्म, निकल के आ जाएगा. 30 मिनट के जगह पे 31st मिनट में बच्चा शुड नॉट बी स्टैंडिंग देयर बिकॉज दैट टाइम इट इज इन्वेडिंग ऑफ अ टाइम जोन ऑफ अ डिफरेंट पर्सन. वो 30 मिनट में खत्म करेगा, 30 मिनट में निकल के आएगा. दीज आर बेसिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टेक्निकलिटीज ऑफ प्रेजेंटेशन स्किल्स दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट.